करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूरत अजूनी स्वयं गुरु प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच आद गुरे नमः जुगाद गुरे नमः सतगुरे नमः श्री गुरुदेव नमः। मैं नाही हाँ कछ नाही किश आहे ना मोरा अवसर लज्जा राख लो सदना जन तोरा अवसर लज्जा राख लो सदना जन तोरा तू ठाकुर तू साहेबो तू है मेरा मीरा तुद पावे तेरी बंदगी तू गुणी गहीरा आपे हर एक रंग है आपे बहु रंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी जो तिस पावे नानका साई गल चंगी। गुरु रूप साध संगत जी सब तो पहला आओ साहिब दी बख्शी फतेह दी साज करिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कर्मा वाले हो जो आप जी ने इस साहिब दी गोद च आउणा चुनिया है। गुरु घर दे बड़े प्यारे विद्वाना ने कीर्तनिया ने आप जी नू आप जी दे साहिब दे प्यारे प्यारे बोल सुनाए। ओ किते ना किते ते आप जी दे गहरे मन दे विच प्रवेश कर ही गए होणगे। सच जाणियो उन्हां नू कोई रंग भी लगेगा ओ अजाई नहीं जाणगे। ओ अजिहे बीज ने जो प्रफुल्लित होणगे अंकुरित होणगे अजाई नहीं जाणगे।
ਪਿਛਲੇ ਦੀਵਾਨ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰਮ ਤੋਂ ਸਾਂਝ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕਰਮ ਕੀ ਏ। ਇੱਕ ਕਰਮ ਉਹ ਏ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਕਰਮ ਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਇੱਕ ਕਰਮ ਏ ਸਾਡਾ ਭਾਗ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਮਿਕਸਅਪ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਕਰ ਤੇ ਰਮ, ਰਮਤਾ ਤੋਂ ਤੇ ਕਰਮ ਤੋਂ, ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਮੇਲ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਮ ਤੇ ਰਮਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ 'ਚ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ, ਕਰਮ ਕੀਤਾ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਅਨੇਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਿਰਜਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਆਪ ਜੀ ਕਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਹਰ ਸਮੇਂ ਆਪ ਜੀ ਕੋ ਕਰਮ ਦੀ ਚੋਣ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਜੀਆਂ ਨੇ ਯੂਬਾ ਸਿਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜਾਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਸੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਤੇ ਕੀਤੀ ਏ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੂਵੀ ਥੀਏਟਰ ਚੁਣਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਲੈ ਆਉਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦਵਾਰ ਚੁਣਿਆ ਏ, ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਰ ਚੁਣਿਆ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ। ਫਿਰ ਕਰਮ ਦਾ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਜੋੜ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਸੰਬੰਧ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਕੋਈ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਪੜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜੀ ਸੀ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਆਮ ਗਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਏ, ਉਹ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਝ ਚੋਰ ਯਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਜੁੱਟ ਬਣ ਗਿਆ। ਮੇਰਾ ਯਾਰਾਨਾ ਕੁਝ ਚੋਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਮ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਸੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ, ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ, ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਪੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਸੀ ਕਣਕ ਦੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਿਆਉਣੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਇਆ ਕਿ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਮੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੋਕ ਮੱਸਿਆ ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲਾਹਨਤ ਪਾਈ ਕਿ ਹੇ ਮਨਾ, ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਤੂੰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਾੜੀ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਣਦਾ ਏ ਤੇਰੇ ਮਨ ਚ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਏ ਉਹ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਕਿਹੜਾ ਮੁਖ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਇੰਨੀ ਮੇਰੇ ਧਿਆਨ ਚ ਆਈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਤੇ 2-3 ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ। ਉਸ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਟੋਲਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਕੋ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਚੋਰੀ ਛੁੱਟ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਪਾਪ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਕਰਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਕਰਮੀ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਵੀਕ 'ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਹੀ ਦਿਨ ਏ।
अगले ऐतवार वास्ते असीं आप जी को माफ़ी मंगते हाँ, हाज़री नहीं भर पावांगे क्योंकि सानू इंडिया जाना पैना। कि की सारा कुछ परमेश्वर करते ने जां मैं भी कुछ करदा है, क्योंकि ये बड़ा वड्डा भरम है। जे इन्ना भरम अज निकल जावे ते असीं कहने आ काफ़ी है। जे परमात्मा ही सारा कुछ करते ने, फिर सतगुरु दी ए बाणी के लेखा रब मंगेसिया बैठा कड वही क्यों लेखा मंगते ने? फिर आप जी तो लेखा बनता नहीं ना। आप जी नूं कहना चाहिए कि तू लेखा दे। फिर सतगुरु दा उपदेश देना आप जी नूं कि तू बाणी पढ़िया कर, तू फलाना कर्म करया कर। आप जी नूं कहना चाहिए कि साहिब पिता तू किरपा कर दे, मैं कर लवांगा। ये दो तरह दियां सतगुरु दी बाणी दो तरफों है। एक ध्यान रखियो, जदों सतगुरु ने साडे विच बह के उचारीए परमात्मा नूं संबोधन करके कि हे साहिब पिता असीं निमाणे जीव हां, असीं की कर सकदे हां, तू दया कर। एक बाणी है जिहड़ी उसे ही साहिब तो परमात्मा दी तरफों सानू उपदेश है। वो दो ढंग ने, उन्होंने समझ लईए तो गल बन जाएगी। भगत कबीर जी कहते ने कि कबीर तू करता तू हुआ। हुण जदों तू करदा है उदों कौन करदा होएगा? भगत कबीर ही करदे होणगे ना। जिवें असीं कहने आ कि आ काम मैं कीता, आ काम मेरे कीते होया। जदों तू हो गया अब तो जाए चढ़े सिंहासन, मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भये हैं, कोई ना सके पहचानी। जिथे कोई दो नहीं है, जिथे तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा, उथे कौन करदा होएगा? साडे को एक बजुर्ग हिंदू वीर आउंदे सी, बहुत बजुर्ग सी, बहुत प्यारे सी, बंदगी वाले सी। असी एक तरफा उन्होंने सवाल किया कि जदों आप जी दी भगवत गीता च लिखिया जांदा कि कृष्ण अर्जुन नूं कहंदे ने कि तू तीर चला, सब कुछ मैं देखांगा, पाप पुन मेरे ते छड्ड दे। ते की आप जी नूं लगदा कि कृष्ण हंकार करदे ने? हिंदी संस्कृत मिक्स बोलदे सी ते कहन लग गए बाबा जी लगता तो ऐसा ही है। असी थोड़े उदास होए कि तुसी इन्हां लोकां नूं, ये हिंदू वीरां नूं समझाउणा सी इस धर्म दे बारे। जे आप ही नहीं समझ पाए ते की समझाओगे? जिथे कृष्ण ये गल करदे ने उथे कोई जशोदा दा कृष्ण बचदा नहीं है। ये एक मार्ग है आप जी दा भी। जदों आप जी चलोगे, ये पौड़ियां चढ़ोगे, आप जी दी पकड़ च आएगा कि किथे जाके अवस्था बनती है। ये नेह कर्म दी अवस्था है जिथों बोल पैदा हुंदे ने। परमात्मा जी करदे ने कि असी करदे ने, इनू समझाउण वास्ते पुरानी सूफी साखी है एक, आप जी नाल सांझी करिए। पुराने साधु कहंदे ने कि मन लो कि तुसी अपने आप बने होवो, तानू परमात्मा ने ना बनाया होवे। तुहाडे च जो शक्ति है, अनाज तो जो शक्ति बनती है, वो भी परमात्मा ने ना बनाई होवे, तुसी आपे बनाउंदे होवो। हालांकि इदां हुंदा नहीं है। आप जी दी हर शक्ति आप जी दा प्यारा परमात्मा बनाउंदा है। आप जी दे अखां दी वेखण दी शक्ति तो लैके उंगल दे हिलण तक दी शक्ति जिहड़ी है वो परमात्मा जी तो बनदी है। कहंदे मन लो कि वो भी तुसी आप ही बनाउंदे होवो, परमात्मा जी ना बनाउंदे होण। फिर तीजी गल कहंदे पुरानी एक खेड़ है कि घड़ा जां कौल फुल कहंदे ने किरपा नूं कि खिड़ जांदा है। कहंदे कि आप जी को जेड़ा किरपा लैण वास्ते, परमात्मा दी दया लैण वास्ते भांडा है, वो भी आप जी ने आपे ही बनाया होवे, वो भी किसे तो लिया ना होवे।
ਜਿਹੜਾ ਉਦਮ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੱਤ ਚਾਹੀਦੀ ਏ, ਉਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਮੀਂਹ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਅਪਾਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਏ, ਹਰ ਸਮੇਂ ਪੈਂਦਾ ਏ, ਪਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਪੁੱਠੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬੁੱਧ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਵੀ ਲਓ ਸਿੱਧਾ, ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਰਦੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਬੋਲੋਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲੱਗੇਗੀ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਦੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਆਪ ਜੀ ਵੇਖੋਗੇ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਏ। ਪਰ ਚੋਣ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਏ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਵੇਖਣਾ ਕੀ ਏ। ਆਪ ਜੀ ਬੁਰਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਰ ਜਸ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਪਸ 'ਚੋਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੋ ਕਰਮ ਆਪ ਜੀ ਚੁਣੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਲ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਜੀਵ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਆਉਂਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਚਾਹੀਦਾ ਏ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਏ, ਘਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੂਜੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਏ ਪਤਨੀ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਪਤਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਤੇ ਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਏ ਕਿ ਹੁਣ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਏ, ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਉਂਗਲ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੋਏਗੀ? ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿੰਦਦੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੁਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ। ਰੱਬ ਨੂੰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਰੱਬ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਇੰਨੇ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲਯੁਗ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦਾ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਬੜਾ ਗੰਦਾ ਏ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹੋ, ਮਨ ਕਿਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖੋਜਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੱਭੇਗਾ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਆਪਣਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਦਾ ਲਾਉਣਾ ਏ। ਜੇ ਦੂਜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਭਾ ਤੇ ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਮੇਰੇ ਕੋ ਇਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਹੁਣੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜਿਆ ਕਿ ਹਮ ਅਵਗਣ ਭਰੇ, ਜੇਤਾ ਸਮੁੰਦ ਸਾਗਰ ਨੀਰ ਭਰਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਏ, ਆਪ ਜੀ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜਲ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਏ, ਤੇਤੇ ਅਵਗਣ ਹਮਾਰੇ। ਹੁਣ ਸਮੁੰਦਰ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਏ। ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸੱਚੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਹੀ ਅਵਗਣ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਅਵਗਣਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਆਪਣੀ ਕਾਲਖ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਕੋੜ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਆਪਣੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਏ, ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਜੀਵਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਵੈਰਾਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰਾਂ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਹੰਝੂ ਵਹਿ ਤੁਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੇ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਬੜਾ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਕਾਲਾ ਆ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਮੰਦਾ ਆ, ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮੇਲ ਹੋਏਗਾ ਕਿੱਦਾਂ? ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਾਧਨਾ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਵੈਰਾਗ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਏ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲ ਨੇ, ਬੋਲ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੁਕਮ ਕਹਿ ਲਓ, ਦੱਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇਊ ਕਿਸੇ, ਦੋਸ਼ ਕਰਮਾਂ ਆਪਣਿਆਂ। ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੇ। ਕਿਹਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ? ਆਪਣੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਆ ਸੋ ਮੈਂ ਪਾਇਆ, ਦੋਸ਼ ਨਾ ਦੀਜੇ ਅਵਰ ਜਨਾ। ਕਿ ਜੋ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਏ ਉਹ ਮੈਂ ਪਾਉਣਾ ਆ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ।
समझ लैनी गल नूं। आप जी ने किसे नूं कौड़ा बोल बोलिया है ते कौड़ा बोल बीजिया गया, क्योंकि उस समय आप जी को चोण सी, आप जी प्रेम दा बोल बोल सकते सी, पर आप जी ने कौड़ा बोया। वड्डना पएगा। जदों वो वड्डदे हो ते वापस फिर कौड़े बोल दिंदे हो। ये तो इदां कर रहे हो कि खेती वड्ड रहे हो, बी रहे हो, वड्ड रहे हो, बोझ रहे हो। कदों ये लेखे दी श्रृंखला टुटेगी? कि इदां कुछ होएगा? आप जी ने मन च किसे प्रति नफरत सोची ते समझो आप जी दा बीज आरंभ होया। सच जानियो, आप जी दियां जिन्नियां बीमारियां ने ना, मोस्टली सिर्फ एक्सीडेंट च जेड़ियां हो जांदियां, सट पेट लग जांदी, ओनू छड्ड के तकरीबन आप जी दियां बीमारियां इसे कर्म दी खेड़ चों प्रगट हुंदियां ने। आप जी कर्म बोवो ते आप जी नू दुख मिलदा है, आप जी कर्म बोवो ते आप जी नू सुख मिलदा है। आप जी दे दुखां दी ते सुखां दी सारी श्रृंखला आप जी दे उत्ते। दूजी चीज भी समझ लेना। मान लो कोई दूजा घर दा परिवार, पति ला लो, पति कोई गलत कर्म बीजे, पति जेड़ा है वो अपनी खेती नू साड़ लवे, अपनी शक्ति नू साड़ लवे। हुण आप जी नू पता है कि इन्हें गलत कर्म बीजिया है, इनू वड्डना पैना है, ते आप जी नू ओहदे ते दया करनी चाहिदी जां वापस आप जी नू भी गलत कर्म बीजना चाहिदा? आप जी दा बच्चा डिग पवे, ओनू सट लग जावे, दर्द होवे, ते आप जी दौड़ के गल ना लाउंदे हो जां वापस क्रोध करदे हो? सच कहिए ते माफ करना सानू जीवन दा ढंग भी नहीं है। असी अपने आप नाल भी बेईमानी करदे हां। असी गुरु घर आउणे आ, इत्थे सब तो वध जीवन जाच सिखनी सी कि जीना किद्दां है। सतगुरु तो वो अखां लैके जानियां सी जिहदे विच आप जी ने आनंद तक पहुंचना सी। पर सच जाणियो कि आप जी इत्थे भी गल्लां नहीं करदे। सानू ते गुरु पिता को अजे तक बहना भी नहीं आया। ते आप जी नू एक होर खेड दसीए, जेड़े जीव परमात्मा दे गोद दे विच बह के आनंद मानना चाहुंदे होणगे, जे आप जी उन्हां नू लागे बह के डिस्टर्ब करदे हो, गल्लां करदे हो, तंग करदे हो, ते ये भी आप जी दा कर्म है। फिर आनंद आप जी नू भी नहीं मिलन लगा। आप जी समझ लो कि जो आप जी बीजोगे इहो वड्डना पएगा। फिर जीव बीजदा क्यों है? असी सारे बीजदे क्यों आ? क्योंकि असी आस नू गलत जगह ते टकाया है। सानू लगदा है कि पति जेड़ा है वो मैनू कुछ दिंदा है लिया के, पर ध्यान ना कदी पति नू देखियो कि परमात्मा दी शक्ति तो बिना वो हिल भी सकदा है, अख तक भी चमक सकदा है, एक श्वास भी लै सकदा है। पति जो आप जी नू दिंदा है वो कुछ नहीं है, परमात्मा दी खेड च सारा कुछ आउंदा है। आप जी दे परमात्मा ही आप जी नू कर्मां दे हिसाब दे नाल दिंदे ने। इसे ढंग नाल आप जी नू ये मनुखा जन्म भी ओदी दया चों मिलिया है। आप जी दा पति जो देवे वो जरूरी नहीं है, आप जी दी पत्नी जो देवे वो जरूरी नहीं है। इन्हां रिश्तियां दे मोह च तुसीं जान बुझ के फसदे हो। हुण इत्थे नाराज होने वाली भी गल नहीं है। परमात्मा ने पति दी सेवा पत्नी नू दिती है, परमात्मा तो मिली है ना वो सेवा। पत्नी दा प्रेम जेड़ा है वो पति नू परमात्मा ने दिता है। जो परमात्मा दिंदा है ओदे च ज्यादा है। जो तुसी एक दूजे नू वासना अधीन दिंदे हो वो आप जी दे कर्मां दी खेड है। आप जी जो बीजोगे ओह वड्डना पएगा। ये ते इदां दी गल होई कि एक किसान ने अपनी खुद दी खेती, जेड़ा जीवन, जेड़े सवास, जेड़े समय दे विच तुसी आनंद मानना सी,
ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਸੀ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ, ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਲਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਕਰਕੇ, ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਲੋਭ ਕਰਕੇ, ਮੋਹ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਇਹ ਖੇਤੀ ਆਪ ਜੀ ਰੋਜ਼ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰੋਜ਼। ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਕਮੀ ਨਾਹੇ ਗੁਣ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਔਗਣਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੰਬੜੇ ਵਿਸਾਰ ਮਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਥੀ ਵਈ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ, ਕਿ ਉਸ ਸਾਈਂ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਨਾ ਹੋਵੀਂ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਦੋ ਖੇਡਾਂ ਨੇ, ਆਪ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਤ ਜਾਣੀ ਕਿ ਤੂੰ ਇੱਕ ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦੀ, ਇੱਕ ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਧੀ ਆ, ਤੇ ਤੇਰਾ ਲੇਖਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਹੋਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਵਰਣਨ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਏ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੱਡਾ ਏ? ਪੁੱਛਣ ਫੋਲ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨੋਈ, ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਵੱਡਾ ਕੌਣ ਏ, ਹਿੰਦੂ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਵੱਡਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਅਸਚਰਜ ਰੰਗ ਏ, ਅਸਚਰਜ ਉਸ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾ ਏ, ਉਹ ਜੋ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਏ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਆਖੇ ਹਾਜੀਆਂ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਬਾਝੋਂ ਦੋਨੋਂ ਰੋਈ, ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਅਮਲਾਂ ਤੋਂ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਰੋਣਗੇ। ਆਪ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਕੋ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਿਬ ਪਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਰਜ ਏ, ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ। ਭਗਤ ਤਰਲੋਚਨ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਸਾਖੀ ਏ ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਘਰ ਅਮੀਰੀ ਸੀ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ, ਪਰ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਤਨੀ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਉੱਠਦੇ, ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦੇ, ਤੇ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦੀ ਕਿ ਇਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਇਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਏ, ਇਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਐਵੇਂ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ ਏ, ਇਹਦੇ ਕੋ ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ? ਤੇ ਭਗਤ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਦਰਜ ਏ ਕਿ ਨਾਰਾਇਣ ਨਿੰਦਸ ਕਾਹੇ ਭੂਲੀ ਗਵਾਰੀ, ਦੁਕ੍ਰਿਤ ਸੁਕ੍ਰਿਤ ਸਭ ਤੇਰੋ ਕਰਮਰੀ, ਕਿ ਤੂੰ ਨਾਰਾਇਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੀ ਏ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਇਹ ਔਲਾਦ ਦਾ ਮਿਲਣਾ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਦੁੱਖ ਏ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਰਮ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ, ਜਦੋਂ ਆਪ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਪ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਮਿਲਣਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਦੋਂ ਕੀ ਆਪ ਜੀ ਸੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰੋਂ? ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਾੜਦਾ ਏ, ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਬਲਦੀ ਏ, ਕੁਝ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਜਾਂ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲਦੀ ਏ? ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਸੜਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਚਿਤਾ ਖੁਦ ਬਾਲਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਏ ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕੁਝ ਸੜਦਾ ਏ? ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਏ ਨਾ। ਸਾਧੂ ਕੋ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰ ਛਿਣ ਇੱਕ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਰ ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਗਲਤ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਏ। ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਗਾੜੀ ਪ੍ਰਗਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ,
किते दूजे नूं पता ना लग जाए कि मैं इन्ना बुरा है। वेखो छपाउण नाल कुछ नहीं होना, ਉਹਨੂੰ पार करन नाल ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ नाल होना है। जिन्नी देर तक आप जी अपनियां वासनावां तो मुक्त नहीं हुंदे, आप जी दे कर्म मैले रहणगे, वो चंगे नहीं होण लगे। सतगुरु दे बोल ने असी कोलों नहीं कह रहे। मन मैले सब किश मैला, ते तन धोते मन हशा ना होए। इन्नी एक चीज नूं समझ लेना। अज तो कोशिश करना कि कोई आप जी दा परिवार दा मैंबर आप जी नूं कौड़ा बोल बोलदा ते बड़े प्यार नाल बेनती करना कि भलिया ये तू कर्म बीज लिया, तैनूं वड्ढना पैना। एक दूजे दी सपोर्ट दे विच चलो, परिवार इहनूं कहंदे ने। इहो ही गुरु नानक दी गृहस्थी है। गुरु नानक दी गृहस्थी कोई इदां दी नहीं कि एक ने कौड़ा बोल बोलिया ते तुसीं दो लियाओ लभ के खलो जा तैनूं दसदा। परिवार दा मतलब इहो ही है। ते जिस दिन आप जी ने इस ढंग नाल कर्मां नूं बीजना शुरू कीता, आप जी दे अंदर आनंद भी घटना शुरू होएगा। आप जी दा आबा जिहड़ा वो पसरना शुरू होवेगा। एक दूजे दी सपोर्ट ते खलोयो, कोशिश करियो। साडे को एक गुरसिख रहिंदे सी, उन्हां नूं इहो खेड जिहड़ी ओहदा अभ्यास करन नूं किहा, जिवें आप जी नूं बेनती कीती है। एक दिन होया कि पत्नी किसे कारण करके नाराज हो गई। उन्हें कोई गुस्से वाले शब्द जिहड़े वो बोलने शुरू कीते ते बड़े प्यार नाल ओनू गलवकड़ी च लैके कहिंदे ने कि भलिए ये तू बीज ते लए ने, ये वड्ढने पैणे क्योंकि गुरु पिता कहिंदे ने। वापस साडे को आए, गलवकड़ी पा के बड़े खुश ते कहन लगे कि खालसा जी इन्ना आनंद है जिहदा कोई हिसाब ही नहीं, क्योंकि क्रोध नहीं आया, नहीं तो हुण नूं ते मैं कई कुछ साड़ के तबाह कर देना ही। मैं वापस ओहदे गल पै जाना ही, कई मंदे शब्द बोलने सी, कई कुछ करना सी। पर एक आनंद है एक दूजे दे नाल जीण च, ते एक दूजे दे चंगे कर्मां दे विच, माड़े कर्मां दे विच नहीं। आप जी जे माड़े कर्मां च मोह दे विच हेत दे विच एक दूजे दा साथ दिंदे हो ते सतगुरु दे बोल आप जी हमेशा पढ़दे हो, पर ध्यान ना समझे नहीं। सतगुरु ने कुछ पंक्तियां कट्ठियां आप जी नूं समझाइयां ने। वो कहंदे छड़ खलोते एक छिण दे विच कहंदे छड़ दिंदे ने, जिनस्यों लगा हेत, जिन्हां नाल तेरा हेत लगा है, जिन्हां नाल तू मोह च फसिया है। हथ मरोड़े तन कपे स्याहो होवा सेत, ते जेहा बीजे सो लुणे कर्मा संदड़ा खेत। ये जो बीजेगा ओह तेनू वड्ढना पएगा। बाबा फरीद जी ने भी आप जी नू समझाया कि फरीदा लोड़े दाख बिजौरियां किकर बीजे जट, बीज दा किकर है, बीज दा कंडे ते लोड़दा है कोई रसदायक फल मिल जावे। जे तू कंडे बीजदा है ते तेनू रस वाला फल किवें मिलेगा। हंडे उन कताएं दा कि कतदा की है उन नू ते चाहुंदा की है, पहनदा लोड़े पट के रेशम नू, पट हुंदा है रेशम, रेशम पाउणा चाहुंदा है। ऐसी कला ना खेडिए जित दरगे गया हारिए। इहो जी कला ना कहंदे खेडिए, इहो जे कम ना करिए जेड़े दरगाह च जाके हार जाइए। फिर सतगुरु दा प्रेम ते ओदी नेड़ता भी सतगुरु समझाउंदे ने। करमी आपो अपनी के नेड़े रोज पढ़दे हो। आप जी दे दुख सुख दी खेड़ आप जी दे कर्मां ते। आप जी अज तो ही अपने कर्मां नू बीजना सही शुरू करो। आप जी नू जेड़ा है वो आनंद मिलना शुरू होएगा। जीवन च एक निर्लेपता जिन्हों सतगुरु अंजन माहे निरंजन कहंदे ने ना,
आ थोड़े दिन पहला एक गुरसिख नाल साडी विचार चलदी सी। वो कहंदे खालसा जी वो फलाने जिहड़े गुरसिख ने ना उन्हां च निमरता बड़ी प्यारी है। कहंदे मैं कई वार उन्हां दी रीस करन दी कोशिश कीती पर होई नहीं, ते असीं बेनती कीती कि तुसीं करियो भी ना, क्योंकि आप जी को होनी भी नहीं। निमरता दो ढंग दी है, एक भोले सुभाਅ चों आउंदी है, भोले भाਅ चों ਜਿਹੜੇ आप जी दे पूर्वले कर्मां चों आप जी नूं मिलदी है। जिथे आप जी चलाक नहीं हो, आप जी कहंदे हो कोई गल नहीं, दूजे ने गुस्सा कर लिया कोई गल नहीं। एक निमरता ज्ञान चों आउंदी है, शिखर चों। असी बेनती कीती कि आप जी दी ओ निमरता है, इहदा नाटक ना करियो, ये धोखा होएगा। जिथे जाके आप जी जान जाते हो कि एक कर्म जिहड़ी खेड सतगुरु ने रचाई है, इहदे च कर्मां दा फल मिलदा है, उस उच्चे लैवल ते जाके निमरता आउंदी है। अंदर पूरा ज्ञान है ते ओहदे तो निमरता प्रगट हुंदी है। आप जी दे सामने कोई जीव अग दे खूह च डिगे ते आप जी दे अंदर दया ते निमरता भाव प्रगट होएगा ना। पर जे आप जी नूं पता ना होवे कि अग च डिगदा पिया, एक दूजे नाल लड़ना खुद दी अगन नूं जन्म देना है, अपने आप नूं साड़ना है। क्रोध दे विच आप जी दियां ग्रंथियां दे विच रस है जिहड़ा तबाह हो जांदा। जीवन दी खेड नूं साडे विद्वान भी नहीं जानदे। कई वो अज कई तरह के शंके करते ने कि बाबा दीप सिंह जी का सिर नहीं सी लथा, धड़ नालों अलग नहीं सी होया, एक छोटा जिहा चीरा आया सी, वो इदां हथ रख के लड़े सी। पर उन्हां नूं खुद नहीं पता क्रोध जदों आप जी ज्यादा करदे हो, तेजित हुंदे हो, क्रोध च हुंदा की है, आप जी सोचदे हो बस कि फलाने ने मैनूं इदां किया, ते सोचां इन्नियां ज्यादा कर लैंदे हो, तुसीं ही सोचदे हो। ये भी ध्यान च रखियो। सानू पुरानी एक सूफी साखी याद आई। कोई संसारी जीव किसे साधु को गया ते कहन लगा कि मैं गुस्सा बहुत करदा आ, मैनू कोई ओदा इलाज दसो, मैनू गुस्सा बहुत आउंदा। ते साधु ने कहा कि इलाज इक्को ही है कि तू ना करया कर, क्योंकि तू ही करदा है, दूजा कोई नहीं करदा। तुसी ध्यान रखियो, तुसी सोचदे हो, पहला तुसी निर्वैर नहीं हो, किसे ना किसे प्रति वैर रखिया है कि फलाना मेरे विरोध ते होवे, विरोध ते पिया, वो गलत कर्म करदा है, ओदा लेखा है, ओनू भुगतान करना पैना है। तुसी साइड ते हट जावो, ओने कोई दूजा जीव चुन लेना आप जी वर्गा। आप जी अपने आनंद च चले जाना, वासनाग्रस्त जीव ने किसे दूजे वासनाग्रस्त जीव नू पकड़ लेना। वो ओदा कर्म है, वो ओदा लेखा है, वो ओदा कर्म है, आप जी दा नहीं है। आप जी सोचदे हो, सोचां नू इन्ना ज्यादा वधा दिंदे हो कि आप जी दियां जिन्नी बॉडी दियां इंद्रियां ने वो एक्टिव हो जांदियां। आप जी दी इत्थे अडरनल ग्लैंड है, वो कोई दो रस जेड़े ने वो आप जी दे खून च मिक्स कर दिंदी है, दो बूंदां सिर्फ, ते आप जी दा ब्लड सर्कुलेशन बहुत तेज हुंदा है ना। इदां क्रोध दे विच कई जीव कहंदे मैनू पता भी नहीं लगा, मैं हाइपर हो गया। तुसीं सोचो जिस जीव ने सारी जिंदगी उन्होंने वरतिया ना होवे, वो पूरे दा पूरा रस एकदम खून च उडेल दिता जावे ते भावें ओदे सारे अंग वख कर दिओ, सारे अंग आपो अपनी थां ते कम करते रहणगे। शूरवीरता प्रगट हुंदी है उत्थे, वो शिखर है। आप जी दी शक्ति दे शिखर ते शूरवीरता प्रगट हुंदी है। शूरवीरता ये नहीं कि तुसी क्रोध च कृपान लैके जाओ ते दूजे दे मार दिओ, वो हंकार है आप जी दा, वो क्रोध है आप जी दा। शूरवीरता मैल रहत जीवन चों निकलदी है, पाक पवित्र जीवन चों निकलदी है। पर असीं जीवन कमाउणा छड्ड दिता है। आप जी नूं इहो राज दी गल समझाइए, आप जी दा सुख दुख आप जी दे कर्मां च, आप जी दा आनंद आप जी दे कर्मां च,
ਤੇ परमात्मा दी प्राप्ति दे तक जाना भी आप जी दे कर्मां च ही है। हालांकि वो कर्मां च पाया नहीं जाता, पर बिना कर्मां ते उस दे द्वार तक भी नहीं पहुंचिया जाता। ये भी गल समझ लेना। वो कर्मां नाल नहीं मिलता, वो अपनी रहमत नाल मिलता है। क्योंकि जे कर्मां ना मिलन लगे तो फिर आप जी दे कर्म उन्होंने खरीद सकते ने, उहदा मुल हो गया। पर वो तो अमुल्क है, मुल ना पाया जाए। वो आप जी दे कर्मां दे मुल नाल भी नहीं मिलता, पर उस द्वार तक, उस आनंद तक आप जी उस सहज अवस्था तक अपने कर्मां तक ही पहुंचते हो। ये दोवां गल्लां नूं समझ लेना। अज तो आप जी कोशिश करियो, प्रण करके जायो कि हे सतगुरु अज तो बाद मैं कर्मां दी खेती चंगी करांगा। फिर आप जी मन तो जेड़ा कर्म करदे हो वो कर्म गिणिया जाता है। जेड़ा मन तो करदे हो, साडे संसारी तल ते जेड़ा पिंड है, वैसे ते सारे ही साडे पिंड ने, जिथे इस मिट्टी नूं सतगुरु ने जन्म दिता, उथे एक बजुर्ग ने, बड़े प्यारे साधु ने, साडा उन्हां नाल प्रेम भी बहुत है। वो एक बार सानू दसन लगे गल, कहंदे कि खालसा जी होया कि मैं टीचर दी जॉब करदा सी ते सरकार ने नियुक्तियां बंद कीतियां सी। उन्हां दिनां च किसे नूं भर्ती नहीं सी कीता जा रहा, बंद सी सरकारी तौर ते। कहंदे एक नौजवान भर्ती होके आया, नवां टीचर बन के आया। मैं उन्होंने पुछया कि सरकार ने बंद कीतियां ने, तू किवें भर्ती हो गया? कहंदे वो कहण लगा कि मैं कीता कि एक दिन बड़ियां भर्तियां वेखियां, इंटरव्यूज दित्तियां, फॉर्म भरे, पर किते मेरी गल ना बनी। ते मैं सतगुरु गाड़ी प्रार्थना की कि सतगुरु मैं कुछ समय लिए, कुछ 1-2 महीनों लिए तेरा कोई जाप करन लगा, ते मैं रोज़ उन्होंने निजम नाल करूँगा, ते मैं बेनती करूँगा, ते उहदे तो बाद इक्को वारी मैं फार्म भरना, इक्को वारी मैं इंटरव्यू देन जाना। जे तू मैनू नौकरी दे दी तो मैं तेरा हुक्म मन के नौकरी करूँगा, जे तू मैनू नौकरी नहीं दी, ये दूजी गल भी समझ लेना। शर्त नहीं रखी सतगुरु ते कि दे ही दे, जे तू नहीं दी तो तेरा भाणा मन के मैं खेती करूँगा। फिर मैं उस तो बाद ये जॉबां दे चक्कर च नहीं भटकना। हुक्म नू पछाणन वास्ते उस ओदी खेड सी, सतगुरु नू हुक्म देण वास्ते नहीं सी। ये भी समझ लेना। असी जो सतगुरु नू कहने, असी सतगुरु नू हुक्म करते हैं कि यह देनी पैनी तेनू, होर कोई हीला नहीं है तेरे को। उन्हें सिर्फ हुक्म नू पछाणन वास्ते कि मैं समझ लऊंगा कि तेरा हुक्म नहीं है, अज तो बाद फिर मैं कोशिश भी नहीं करूंगा। सुखमनी साहब दा जाप कहंदा मैं अमृत वेले 2 बजे करना शुरू किया। जिन्ना चिर मैं प्रण किया सी उन्ना चिर करके अरदासा सोधिया ते उठ के 10-11 बजे अपनी माता जी नू कहा कि माता जी अज जिन्ने मेरे सर्टिफिकेट ने ना वो संदूक चों, क्योंकि पुराने समय ते संदूक ही हुंदे सी, अलमारियां हुण चलियां ने, उहदे चों कढ दिओ, मेरे मंजे ते रख दिओ। मैं उन्हूं ध्यान नाल वेख के लड़ीवार ला लवांगा सीक्वेंस दे विच, तां कि जदों मैं किते फार्म भरन जावां ते मैं हुण जदों भी भर्ती निकली ना उदों मैं फार्म भरना ते इंटरव्यू देनी। कहंदे शाम नूं मैं घर गया, माता जी ने वो जिहड़ा लिफाफा सी वो मैनू सर्टिफिकेट्स दा देता फाइल वाला, ते नाल कहंदे आ तेरी कोई चिट्ठी भी आई है, ते अज ही आई है। कहंदे जदों मैं खोली ते पुरानी जेड़े मैं फार्म भरे सी उहदे विच मेरी जॉब जेड़ी वो लग गई सी। कहंदे मेरा सिर झुक गया, अखां नम होईयां कि सतगुरु तू धन है, तेरी खेड निराली है। अजे तो मैं सोचा सी फार्म भरूंगा, इंटरव्यू दूंगा, पर तू पहला ही दिया कर दी। वो कहंदे मैनू बड़ी गल चंगी लगी, ते मैं भी ना उदा ही सुखमनी साहब दा जाप करना शुरू किया, ते मंग कोई ना रखी कि चल परमात्मा तेरे मिलाप ली सही। कहंदे 15 दिन बीते, होया कि जाप करदे करदे कहंदे पता नहीं मैं सौ गया कि मैनू सुपना आया जां मैं समाधि लीन हो गया। कहंदे रब जाने, मैनू नहीं पता। कहंदे कोई 2 देवते आए, उन्हां 2 देवतियां ने कहंदे मैं
देखदा की है, मैं देख रहा है कि दो देवते आए ने ते मैं उसे अपने मंजे ते बैठ के सुखमनी साहब दा जाप करदा पिया। कहंदे उन्हां ने आके मैनू किया कुछ नहीं ते मैं गुटका साहब रख के उन्हां दे मगर तुर पिया। कहंदे अगे कोई बड़े वड्डे महल च मैनू लै गए ने ते उत्थे कहंदे एक कमरा बंद है। मैं उन्हां नू पुछया कि एक कमरा बंद क्यों है ते कहंदे तुहाडे पिंडां लागे दा एक गुरसिख है, उहदे वास्ते कमरा रखिया है, उहने 5-4 दिनां च आ जाना। कहंदे अगे जाके उन्होंने मैनू एक बेंच ते बिठा दिता ते मेरे हाथ च एक पोथी दे दी। कहंदे मैं पोथी नू फरोलदा जाना है, किते एक अखर लिखिया है, किते अद्धा अखर लिखिया है। कहंदे अगे जाके मैनू समझ नहीं आउंदी कि यह पोथी की है। कहंदे अगे जाके 2-3 पंक्तियां कट्ठियां आईयां ते मेरी समझ च आया भी ये ते सुखमनी साहब दा जाप है। कहंदे इन्नी देर होई ते मेरी अख खुल गई। कहंदे पर मैनू समझ ना आई। कहंदे मैं ध्यान रखिया ते जदों मैं ध्यान रखिया कि 5-4 दिनां बाद वो गुरसिख वल गेड़ा मारदा रहा ते वाकई कहंदे इदां ही होया। 5-7 दिनां बाद वो चलिया गया, शरीर छड्ड गया। कहंदे मैनू समझ आई कि कोई सुपना नहीं सी, ये मेरे प्यारे सतगुरु ने कुछ मैनू सिखाया है। ते कहंदे समझ आई कि उन्हां मैनू दिखा दिता कि आ देख लै, जेड़ी बाणी तू मन ला के पढ़दा है वो तेरी परवान है, जेड़ी तू नहीं पढ़दा वो खाली है, वो परवान नहीं है। ये खेड़े सतगुरु दी। आप जी मन ला के जो कर्म करते हो वो आप जी दा कर्म परवान है। इस करके अपने मन तो कर्मां नू करन दी कोशिश करियो। सतगुरु दे बोलने मन हालीए, तन हाली नहीं है। असी तन नू हाली बनाउणे आ। मन हाली किरसाणी करनी, शर्म पानी तन खेत। ये तन खेत दे रूप च मिलिया है जिथे नाम बीजना है। मन नू हाली बनाउणा है। ते फिर सतगुरु एक होर गल भी कहंदे, कहंदे नाम बीज संतोख सुहागा। उत्ते नाम बीज के संतोख दा सुहागा भी मारना पैना। ये नहीं कि जपजी साहब पढ़िया ते सतगुरु नू कहा कि हुण दिंदे की हो। संतोख भी रखना पैना जो वो तुठ के देवे। अपने कर्मां नू ध्यान नाल वाचिओ। अपने कर्मां दे विच अपनी मैल जिहड़ी वासना दी लगी है उन्नू पछाणिओ। ज्यों ज्यों आप जी दे कर्म पवित्र होणगे ना, आप जी अपने सतगुरु वर्गे होणोगे। आप जी गुरु नानक पातशाह नू गुरु क्यों मनदे हो? उन्हां दे कर्मां करके ही मनदे हो ना। जे आप जी नू कोई कर्म उन्हां दा दिखाई ना दिंदा ते सोच के देखो। एक कर्म खेड़े, कर्म दी खेती करनी पएगी। आपो अपनी कर्म दी खेती तगड़े होके बीजियो ते सच जानियो, अवेसले ना होयो। हर क्षण आप जी नवा कर्म बीज सकते हो। ऐसे समय आप जी कर्म बीज सकते हो। आप जी सतगुरु गाड़ी हुणे मत्था टेकन लगते हो ते ध्यान ना देखियो आप जी वाकई वो कर्म बीज रहे हो। जे लोकां नू विखाओगे तो फिर कर्म विखावा बीजिया गया। फिर आप जी दी नमस्कार नहीं सतगुरु नू, वो कर्म नहीं बनिया, विखावा आप जी दा कर्म बनिया है। धर्म दी दुनिया अज ताइयों विगड़दी जांदी है क्योंकि असी मन ला के कर्म नहीं कर रहे। असी सिर्फ विखावा कर रहे हैं जां सिर्फ सोचते हैं कि कल करांगे। सोचना नहीं है, करना है। असी भी आप जी की अवस्था च सी। रोज रात नू सोचना कि सवेरे अमृत वेले उठ के बाणी पढ़नी शुरू करनी। अमृत वेला होना सतगुरु ने ठा भी देना पहला। फिर असी सोचना 10 मिनट होर सौ लाइए ना। फिर 10 मिनट लंघ जाने, घंटा लंघ जाना तो फिर मन एडा शैतान है, मन का गलत दोष ला रहे। असी इन्ने शैतान सी कि सोचना कि लै घंटा लंघ गया, अज ते टाइम लंघ गया, हुण कल सही। बाकी सारा दिन भी बर्बाद कर देना। फिर अगला दिन डिकना कि कल अमृत वेले। इदा ना अपना समा गवायो। ये एक एक समा आप जी की कर्मां की खेती है। जिस दिन आप जी ने एक खेती नू बोना शुरू किया, आनंद की घटना घटनी शुरू होनी है। आनंद जेड़ा है वो आप जी नू
हुण आनंद दा थोड़ा जिहा जिक्र करके 2-3 मिनट दे विच, वैसे तो आनंद दी खेड आप जी नूं अगले ऐतवार करनी सी, लंबा विशा है, पर 2-4 मिनट आप जी नूं सिर्फ आनंद दियां कुछ झलकियां दिखा के कि किस आनंद तक आप जी पहुंचोगे, ते आप जी को विदा लईए इत्थों तक पहुंचोगे कि आप जी दा कोई बंद भी कट्टे ते आप जी नूं पीड़ा नहीं होएगी। सतगुरु ने पूरी जीवन खेड दे विच आप जी नूं इहो खेड समझाई सी कि जे आप जी ने अपने कर्मां नूं सही कीता, हुण देखो आप जी परिवारां च रहिंदे हो ना, ये बच्चियां नूं आप जी स्वार्थ अधीन पाल सकदे जे। ये बच्चे आप जी दे नहीं ने, कि आप जी दे ने, तुसीं बनाए ने, इन्हां नूं तुसीं वड्डे करदे हो, ये रोज़ वड्डे हो रहे ने, कि तुसीं इन्हां नूं साह दिंदे हो जिन्हां ते जींदा ने, कि तुसीं इन्हां दा हिरदा धड़काउंदे हो? नहीं। फिर कौन धड़काउंदा होएगा? तुसीं ते भरम दे विच ही कहंदे हो कि मेरा। असीं पिछे जे एक भैणां दे घर गए, उहने बच्चे नूं एक टी-शर्ट पाई सी ते वेख के असीं हस पए। उत्ते लिखिया पता की सी कि इट्स अ मॉम्स प्रॉपर्टी, कि यह मां की प्रॉपर्टी है जिहड़ी बच्चे नूं टी-शर्ट पहनाई ही। ते असीं हसिया कि भोलिए तैनूं पता नहीं है प्रॉपर्टी जिहदी है उहदी रहनी, तेरी नहीं बन लगी। जे तुसी स्वार्थ अधीन पालिया ते आप जी ने स्वार्थ की खेती की, ते जे साहिब ने मैनू सेवा दी है, वो परमात्मा का एक रंग है। आप जी ने पूरी ईमानदारी ना उन्नू चंगा पढ़ाया लिखाया, उन्नू चंगे गुण दिते, चंगे संस्कार दिते, अपनी मां की जिहड़ा कर्म है उन्नू पूरा किया, ते आप जी ने सेवा बीज लई। दोवां चों की चंगा है? आप जी नूं तन दा कोई भोजन दवे, बुरा मैला पैड़ा जिहा बदबूदार, कि आप जी खा लैंदे हो? नहीं ना खांदे। मन दा भोजन है चंगे विचार चंगे गुण। आप जी नूं कोई गंदे शब्द दवे, कोई कवड़ा बोले, आप जी पहला ही तैयार रहिंदे कि कोई बोले तो सही मैनू। आप जी लखां माड़े बोल जड़े हो भुल जांदे हो। मन नूं किदां दा दिंदे हो भोजन? दूजी खेड भी समझ लेना, आप जी नूं कोई कवड़ा बोल दवे, आप जी ना लो, गल मुक गई। आप जी दे वास्ते ही नहीं है। परमात्मा जी आप जी नूं अंदर शक्ति दिंदे ने वेखण दी, खेडण दी, रंग मानण दी, ओनू माणो। आप जी नूं कोई कोले दिंदा है कि अपने घर च खलार लै ते इन्हां कोलियां ते चल, ते हालांकि तुसी चलदे भी हो। इन्ने समझदार ते असीं हैं, माफ करना, कि छेती छेती खलारदे आ, अपने घर च कला कलेश पा लैने आ। वो होया किते पत्नी दे दूर रिश्तेदारां च, ते इत्थे अमरीका भी आप जी दे फोनां दे जरिए कोले आप जी दे घरां च अज भी डिगदे ने। इंडिया तो आ जांदे, सानू ते समझ नहीं आउंदी। साडे को एक बार एक भैण आई, रोई जावे, असीं क्या होया की? कहंदी कि जेड़े मेरे सहुरे परिवार ने ना, उन्हां ने कदी मैनू एक सूट भी नहीं भेजिया। असीं क्या अपनी अलमारी फोल उहदे च सूटां दी कमी है? कहंदी नहीं, वो बहुत ने, पर एक सूट भी नहीं भेज सकते मेरे वास्ते। असीं क्या कि तिन्नू परमात्मा ने राजा बनाया, इत्थे घर दिता, धीआं पुत दिते, बिजनेस दिता, गड्डियां दित्तियां, आनंद दिता है। तू मंगता क्यों बनी है? सानू सिर्फ इन्नी गल दा जवाब दे। तू एक सूट ते रोंदी पई है? इदां ते इंडिया दे विच ओ जड़ियां मंगण वालियां भैणां ने वो भी नहीं रोंदियां। ऐदां ही आप जी एक सारे अपने जीवन नू बर्बाद कर दे जे। ये अज्ञानता, ये मूर्खता ना करियो। सतगुरु ने वो आनंद समझाया सी, उस आनंद ते पहुंचे हो। सतगुरु दा पूरा जीवन आनंद दा सी। सतगुरु जदों तत्ती तवी ते बैठे सी ते थल्ले अगन बलदी सी, जेड़ा थल्ले अग बालदा सी वो सतगुरु नू किहो जे बोल बोलदा होएगा? हथ जोड़ के बेनती करदा होएगा कि सतगुरु तत्ती तवी आप जी ली गर्म कीती है, बैठो। जेड़ा सिर च रेत गर्म कर करके पाउंदा सी, वो किदां दे बोल बोलदा होएगा? तुसीं सोचो। आप जी वास्ते ते अजे उन्नी हालात भी नहीं बनी
पर सतगुरु ने जीवन एक कुर्बानी दे के आप जी नूं समझाया सी कि इन्ना कुछ हो भी जावे, जे आप जी अपने जीवन चो आप जी रंग चो ते आप जी नूं दुख नहीं लगेगा, दुख पो भी नहीं सकेगा, आप जी दा वाल भी विंगा नहीं होएगा। नावें पातशाह नूं कई दिन निके जे पिंजरे दे विच उन्हां ने कैद कर छड्डिया, खाण नूं कुछ नहीं दिता। कि बड़े प्यारे बोल बोले होणगे, जिन्हां ने आरे थल्ले चीरिया होएगा, देगां चो बालिया होएगा, रूह च साड़िया होएगा, वो किन्ने क कठोर मनुख होणगे ते किन्ने क ज्यादा जिहड़े उन्हां ने कौड़े बोल बोले होणगे, पर की गुरसिखां नूं दुख पहुंचा सके। आप जी दियां एक चौपई साहब दियां पंक्तियां ने जिहदे विद्वानां ने अर्थ गलत कीते ने, असीं सही आप जी नूं करके दे के जाने। सतगुरु कहंदे ने संतां नूं जे कोई दुख पाउण दी कोशिश करे, संतन दुख पाए ते दुखी वो खुद दुखी हो जाता है, संत कदी दुखी नहीं हो सकता। ये जीवन की खेड ही नहीं है, जेड़ा दुखी हो जावे वो संत भी नहीं हो सकता। हो सकता है ते फिर जे वो जड़ा दुखी होया मनुख ने सुख पाउणा होवे ते फिर केड़ा साधन है सुख पाए। साधन के सुखी साधुआं दे जेड़े ढंग नाल सुख पाया है। आप जी अपने उस आनंद तक जायो जदों अपनी आप जी कर्म पूरा करदे हो ना, आप जी अपने बच्चियां नूं सेवा दे अधीन पालो, अपने कर्म कमाउण लई पालो। कल नूं ये विगड़ जाण, इन्हां नूं किते वासना दी समझ वासना च वड़ के ही आउणी होवे, क्योंकि इन्हां दा अपना भी ते कर्म है ना, ते आप जी नूं फिर दुख नहीं होएगा। आप जी कोई कहोगे कि सतगुरु जो तू मैनू समर्था दिती मैं पूरी कर पती, हुण गाड़ी तू जान। फिर दुखी नहीं हुंदा जीव, दुखी उदों हुंदा जदों वासना अधीन हुंदा। चलो सतगुरु दया करन, आप जी ध्यान ना इस खेड नूं करियो। ज्यों ज्यों आप जी करदे जाओगे आप जी नूं अपना आनंद पता लगेगा, आप जी अपने जीवन दे रंग नूं माणोगे। ते अगली वारां जदों सतगुरु ने दया कीती असीं हाजरी भरांगे, पर सच जाणियो साडी भेटा आप जी दा एक एक डॉलर नहीं है। आप जी दे शक्ल ते ओ आनंद दी झलक किते सानू मिल जाए ना ते असीं आप जी नूं नमस्कार करांगे। आप जी दी अख चों किते एक हंझू सतगुरु नूं चलिया जावे, आप जी दी नमस्कार किते सतगुरु नूं हो जावे, ओ साडी भेटा है। आ भेटा भावें हुणे चुक लो, नहीं चाहिदी, असीं लैके भी नहीं जानी। ते साडी भेटा अजे तक आप जी चों बहुतियां जियां ने दिती नहीं है, ये उधार आप जी वाल बाकी है, असीं लैण फिर आवांगे। आप जी तगड़े होके मेहनत करियो। सतगुरु दा ओ कोट कोट धन्नवाद जेड़े आप जी दी स्रोत बने, जेड़े साडे अंदर बोल बने। होइयां भुल्लां चुकां दी क्षमा, आओ गज के बुलाओ फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।